Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I hope that you are fine. And I am here with you with the fifth lecture of data structures and algorithms course. And in this lecture, we will discuss about three main concepts, which are problems, algorithms, and programs. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science. And currently, I'm working as a lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. So let's start this lecture. So first we will discuss that what is a problem. So generally the programmers they deal with three things which are the problems, algorithms and computers program. तो एक चीज़ जहन में ये आती है कि क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट सिमिलर है या इसके अंदर जो है वो कोई डिफरेंस है. तो इसमें इसमें स्लाइड सा डिफरेंस है. बेसिकली वी स्टार्ट विथ प्रॉब्लम एंड देन वी डिज़ाइन एन एल्गोरिदम to solve that problem, and then we implement that algorithm with the help of computer program. And the computer programs, they are written in some programming language, and the algorithms they are not written in some programming language. They are generally some like you can specify algorithms in simple plain English. A problem is a task to be performed. A problem is best thought of in terms of inputs and matching output. तो ये होगा कि आपको कहा जाएगा कि हमारे पास inputs जो हैं वो ये हैं और हमें इससे 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 corresponding जो है वो हमें ये outputs जो हैं वो required है. We are not talking about any output. We are talking about matching outputs. These are the inputs and these are required outputs. And there is no constraint on how the problem will be solved. तो हम कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है या इसका तरीक़ेकार क्या होगा, कोई स्पेसिफिक तरीका है उसी से सॉल्व करना है. तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होती, बट वी कैन डिफाइन द सोर्स कंस्ट्रेंट दैट मस्ट बी met. So we will only specify that to solve we require a solution which requires certain resource constraint. तो ये previous lectures में भी हम इसके बारे में बात कर चुके हुए हैं कि हमारे पास कुछ resource constraints होंगे और हमारा solution जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो उन constraints को लाजमन satisfy कर रहा हो. And a problem definition should include constraints on the resources that must be consumed by any acceptable solution. तो हम सिर्फ उस solution को acceptable कहेंगे जो कि उन constraints को satisfy कर रहा होगा. तो अगर वो उन solution जो है वो constraints को satisfy नहीं कर रहा तो हम उस solution को accept नहीं कर सकते. Okay, so there is another view to way to view a problem, and that is there uh, how we mathematically view that problem. So we can view a problem as functions in mathematical sense. A function is a matching between inputs and outputs. तो ये आपको पता है, आपने जो मैथमेटिक्स के प्रीलिमिनरी कोर्सेज हैं उसमें ये देखा होगा कि एक फंक्शन की एक डोमेन होती है विच इज़ एक्चुअली द इनपुट and there is a range of the function which is actually the outputs. So the domain and the range that make up a function. An input to the function might be a single value or a collection of information, and the values make up an input called the parameters of the function. So in programming sense we call the inputs as parameters. तो जब आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स पढ़ा है तो उसमें आपने चीज़ देखी होगी कि जब हम कोई भी फंक्शन को इनपुट देते हैं तो हम कहते हैं कि these are function parameters or inputs to the function. A specific selection of values for the parameters is called an instance of the problem. तो जो भी आप उस प्रॉब्लम को जो भी आप इनपुट दे रहे हैं जो भी कलेक्शन जो एक वैल्यूज़ को आप उसको दे रहे हैं, सो वी कॉल दैट इज़ द इंस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम. तो हमें उससे उससे रेलिवेंट जो है वो आउटपुट जो है वो चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल द इनपुट पैरामीटर टू अ सॉर्टिंग फंक्शन माइट बी एन अरे ऑफ इंटीजर्स. ये जो अरे है ये एक अनसॉर्टेड हो सकती है. मे बी इसमें जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे हो, बट व्हाट वी नीड दैट अरे शुड बी, जो आउटपुट हमें मिलेगी वो ये होगी कि जो उसमें वैल्यूज़ हैं अरे में दैट विल बी सॉर्टेड.
वो हाईएस्ट से लोएस्ट में हो या लोएस्ट से में हो, बट दे द वैल्यूज विल बी इन सर्टेन order. And any problem instance must always result in the same output every time the function is computed using that particular input. तो इसमें एक ये चीज़ है कि जब भी आप कोई सोल्यूशन कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, तो जब भी हम उसको कोई आउटपुट देंगे, एक से एक सिंपल आउटपुट देंगे, तो हर दफ़ा उसका सोल्यूशन वही होना चाहिए। अगर इस तरह से हो कि एक दफ़ा आउटपुट देते हैं, तो कोई इनपुट देते हैं तो कोई और सोल्यूशन आता है, नेक्स्ट टाइम कोई और आउटपुट मिलती है, सो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट एल्गोरिदम। तो हमें हमें चाहिए कि हम उसको रिवाइज करेंगे कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम इसके अंदर मौजूद है। So next we will discuss that what is an algorithm. An algorithm is a method or a process followed to solve a problem. तो इसकी जो सबसे अच्छी जो इसकी एक एग्जांपल हो सकती है वो हो सकती है कुकिंग रेसिपी। अब उस कुकिंग रेसिपी में क्या होता है कि सबसे पहले आपको बताया जाता है कि देयर आर सम इंग्रेडिएंट्स एंड उसके बाद जो है वो आपको बताया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप्स क्या होंगे। एक प्रोसीजर बताया जाता है कि इन इंग्रेडिएंट्स को आपने कैसे यूज़ करके कोई भी एक डिश जो है वो तैयार करनी है। सो एल्गोरिदम की एग्जांपल भी बिल्कुल इसी तरह से ही है कि आपके पास इनपुट्स होंगी और आपने उन इनपुट्स को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है और फिर उससे आपको कोई ना कोई फाइनली जो है कोई ना कोई आउटपुट जो है वो मिल जाएगी। If the problem is viewed as a function, then an algorithm is an implementation for the function that transforms an input to the corresponding output. तो उसमें क्या होगा कि अगर हम उसको कहते हैं कि ये फंक्शन है, तो उसमें एल्गोरिदम क्या होगा कि वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा और उस स्टेप प्रोसीजर के स्टार्ट में आपको इनपुट्स आपको मिलेंगी और फाइनली जब प्रोसीजर एंड होगा तो वो आपको आउटपुट जो है वो रिटर्न करेगा। तो हम उसको कह देंगे दिस इज एन एल्गोरिदम। A problem can be solved by many different algorithms। तो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई एल्गोरिदम्स हो सकते हैं। सपोज कि अगर हम एक अरे ऑफ इंटीजर्स है, अगर हम उसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स जो है वो मौजूद है और हर एल्गोरिदम की कोई ना कोई उसका कोई कॉस्ट है और उसके कोई ना कोई बेनिफिट्स है। एडवांटेज क्या है कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ नोइंग सेवरल सॉल्यूशंस दैट um, is that in some particular solution is in some particular scenario, solution A might be more efficient than solution B, and in some other scenario, uh, in some other class of problem, solution B is might be better than solution A। तो ये हो सकता है, ये हमने शुरू में भी आपको बात मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और उनमें से हमने देखना है कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन बेटर जो है वो सूट कर रहा है। तो उसका फ़ायदा क्या है कि हमारे पास हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो करंट हमारे पास सिनेरियो उसमें कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है और ऐसे नहीं हो सकता कि कोई एक सॉल्यूशन जो है वो ऐसा हो कि वो हर सिचुएशन में वही बेहतर परफॉर्म कर रहा हो। ऐसा पॉसिबल जो नहीं है। Okay, next we will discuss the properties of an algorithm. Um, something can only be called an algorithm if it has all of the following properties. इसमें कुछ properties हैं, उसको हम discuss करते हैं. What are the properties of an algorithm? First thing is it must be correct. Correct का मतलब ये है कि जो हम इसको inputs दे रहे हैं, ये हम उससे relevant outputs हमें दे रहे हैं. So let's say there is an algorithm which adds two numbers. So we know that 2 plus 2 is 4. So an algorithm is correct if it gives us the right output. और अगर हमें 2 plus 2 जो है वो 3 मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये एल्गोरिदम जो है करेक्ट नहीं है, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम इसके अंदर मौजूद है। And the second property is that it is composed of a series of concrete steps. सो ये चीज़ ध्यान में रखें कि कोई भी एल्गोरिदम ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ एक स्टेप हो। मल्टीपल स्टेप्स होंगे और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। फर्स्ट स्टेप जो होगा एल्गोरिदम में दैट इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट स्टेप और इसके बाद जब जैसे जैसे आप चलते रहेंगे तो जो प्रीवियस स्टेप्स हैं दे विल बी लिंक टू द करंट स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप्स विल आल्सो बी रिलेटेड टू द करंट स्टेप। तो इसमें ये होता है कि हर स्टेप में आप
एक एक पीस ऑफ वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, और इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं, और आपको फाइनली जो है वो एक सॉल्यूशन, एक आउटपुट जो है वो आपको मिल जाती है। सो ये चीज़ ध्यान में रखें कि कोई भी एल्गोरिदम ऐसा नहीं होगा जिसमें सिर्फ एक ही स्टेप हो। देयर विल बी मल्टीपल स्टेप्स, और एंड दीज स्टेप्स विल बी रिलेटेड टू ईच अदर, and each step is completely understood and doable in finite time. This is very important thing. जब एल्गोरिदम आप किसी भी प्रोग्रामर को देंगे, तो जब वो उसको पढ़ेगा, उस स्टेप को पढ़ेगा, तो उसको समझ लग जाएगी इसमें क्या करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट दैट स्टेप इज डूएबल इन फाइनाइट टाइम। तो जब आपने उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है, तो उसने एग्जीक्यूट होना इन फाइनाइट टाइम। तो ऐसा होना चाहिए कि वो स्टेप जो है वो एक फाइनाइट टाइम में एग्जीक्यूट हो, और उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो हम चले जाएं। देयर कैन बी नो एम्बिग्यूटी as to which step will be performed next, and that should be also clear that what is the next step. ये भी मैंने जैसे आपको ये बताया था कि मल्टीपल स्टेप्स होंगे, एंड these steps are linked to each other, उसमें एक सीक्वेंस होगा। और आप जब स्टार्ट करेंगे नॉर्मली, तो उसमें आप इनपुट लेंगे, फिर उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, और जो लास्ट स्टेप होगा उसमें आपको आउटपुट जो है वो मिलेगी। और इन बिटवीन दे कैन बी मैनी स्टेप्स। उसमें इट डिपेंड्स अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क के कितने स्टेप्स हैं, but all of these steps are linked to each other, and it must be composed of finite number of steps. ये भी हम ये बात कर रहे थे कि the number of steps are finite. They can be multiple steps, but they are finite number of steps. There is ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा एल्गोरिदम हो जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में पता ही ना हो कितने। Maybe this is possible that if the problem is very complex, they can be they can be hundreds or even thousands of steps, but we can still count them. ऐसा नहीं हो कि हमें पता ही ना हो कि इस प्रॉब्लम में कितने स्टेप्स हैं। तो ऐसा पॉसिबल जो है वो नहीं है। एंड द फाइनल प्रॉपर्टी इज दैट इट मस्ट टर्मिनेट। why this is important? Because when the algorithm will terminate, if it will give us the output. तो हम क्या चाह रहे हैं उससे कि हमें आउटपुट मिले। तो अगर वो एल्गोरिदम टर्मिनेट नहीं होगा, तो आपका आउटपुट भी जो है वो नहीं देगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So these are some properties of algorithms, and which must be met, जो कि जब भी हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे, तो हम इन सब बातों का ख्याल रखेंगे। अब फाइनली हम देखेंगे what are the computer programs. Simply the computer programs are implementation of algorithms in some specific programming language. It depends upon you कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इस कोर्स में हम C++ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेनली एल्गोरिदम का फ़ायदा यही है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसलिए आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। So formally, what is a computer program? A computer program is an instance or concrete representation of an algorithm in some programming language. An algorithm must provide sufficient detail that it can be converted into a program when needed. तो ये भी जैसे हम लास्ट स्लाइड में हम बात कर रहे थे कंप्यूटर एल्गोरिदम्स की, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी स्टेप है वो कम्प्लीटली अंडरस्टूड होना चाहिए। बिकॉज ये पॉसिबल है कि एल्गोरिदम कोई एक पर्सन डिज़ाइन करे, और उसको जो इम्प्लीमेंट है उसका जो प्रोग्राम है वो कोई और पर्सन लिखे। तो इसलिए जो है जब आप एल्गोरिदम किसी भी पर्सन को देंगे, तो उस एल्गोरिदम को देख के उसको समझ लग जाए कि उसने क्या करना है, क्या कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो उसके लिए उसने लिखनी है, ताकि वो उनको इम्प्लीमेंट जो है वो कर सके। तो इसको हम समराइज अगर हम करें इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को, अ प्रॉब्लम इज अ फंक्शन और अ मैपिंग ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट्स। एन एल्गोरिदम इज अ रेसिपी फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम whose steps are concrete and unambiguous. Algorithm must be correct of finite length and must terminate for all inputs. And finally, a program is an instantiation of an algorithm in a programming language. तो ये इनकी तीनों की समरी है, और जो अभी इस वीडियो में हमने जो है वो चीज़ें डिस्कस की हैं, प्रोग्राम एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम्स, एल्गोरिदम्स एंड प्रोग्राम्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करेंगे। इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जब हमने परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है डिफरेंट एल्गोरिथम्स का,
तो उसके लिए हमें इनकी ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, आई से यू गुड बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।